Assalamu alaikum students. Today we are doing the past paper of differentiation. Uh, Now, what we have in this question number one. Question number one is a sector of a circle of radius r has angle theta, where theta is less than pi. The perimeter of the sector is 30 centimeters, so that the area of the sector is given by this. हमें इस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है. What is a sector? Here is a sector. Now, a sector of a circle with radius r, angle theta. Perimeter of the sector is 30. Perimeter is 2r plus arc length. So 2r plus arc length is r theta. What is this arc length? Arc length is r theta. Now, we have to calculate the area of the perimeter. Area of the perimeter is half r squared theta. We need area in terms of r only. So, the perimeter given is 30 equals to 2r plus r theta. And can we say that r theta equals to 30 minus 2r and theta equals to 30 minus 2r over r. यहाँ पर रखते हैं जरा r स्क्वायर्ड थीटा की जगह पर 30 minus 2r over r. r and r कैंसिल आउट. हाफ ने इसको कैंसिल किया, 30 को तो 15 हुआ और 2r को कैंसिल किया तो सिर्फ r रह गया. So now it will be 15r. r multiply कर देंगे in the bracket minus r square. This we have to prove. Now after that, given that r can vary, find the maximum area of the sector. How can we calculate the maximum area of the sector? Equation of the area is given 15r minus r square. Differentiate this. So a dash will be 15 minus 2r. इक्वेट कर दें इसको जीरो से, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम एक्सट्रीम वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं और डिफरेंशिएट करने के बाद उसको जीरो जीरो से इक्वेट किया जाएगा तो विल गेट द एक्सट्रीम वैल्यू. सो 2r इक्वल्स टू 15 एंड r इक्वल्स टू 15 अपॉन 2. r आ गया 15 अपॉन 2. given that r can vary, find the maximum area. Therefore, what is the area? Area will be 15r minus r squared when r is 15 over 2. So it will be 15 times 15 over 2 minus 15 over 2 whole square. So by this we'll get the maximum area. By this we'll get the maximum area, which is 56.25. This is the maximum area. हमने डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट किया. r is the variable, r की वैल्यू कैलकुलेट की और इसको एरिया की इक्वेशन में रख दिया तो हमारे पास मैक्सिमम एरिया डेवलप हो गया. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, we have to differentiate this. अब आप देखिए इसको हमें डिफरेंशिएट करना है. हमारे पास इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. Here u is 2x cos 2x and v is sin x over 3. u डैश क्या हो जाएगा बच्चों? cos x का होता है डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये हो गया माइनस sin 2x. याद रखिए अगर एंगल 1 के अलावा कुछ और हो तो डेरिवेटिव ऑफ द एंगल साथ में आएगा. तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 2. So the answer will be minus 2 sin 2x. v डैश कैलकुलेट करना है. sin का डेरिवेटिव cos x by 3. एंगल का डेरिवेटिव साथ में क्या आ गया? 1/3 डेरिवेटिव ऑफ द एंगल. तो जनाब v डैश क्या हो गया हमारे पास? 1/3 cos
x over 3. So now dy over dx will be u, the derivative of v, 1 upon 3 cos x by 3 plus v sin x by 3 cos v, the derivative of u. It will be minus 2 sine 2x. So what is the final answer? It will be 1 upon 3 cos 2x cos x over 3 minus 2 sin 2x sin x over 3. This is the final result. Now, now the second part. Now the second part is here u is tan x, v is 1 plus ln x. U dash is sec square x, v dash is 1 प्लस सॉरी 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया। ln x के क्या होता है? ln के साथ जो भी चीज लिखी हुई है वो अपॉन में इसका डेरिवेटिव ऊपर। सुना v u डेरिवेटिव द डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u द डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v स्क्वायर। थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर 1 अपॉन एक्स एक्स से हम एलसीएम ले लें तो इट विल बी एक्स सेक स्क्वायर एक्स, साथ में क्या आ गया 1 प्लस ln x प्लस टेन एक्स, और ये जो 1 अपॉन एक्स वाला x था एलसीएम लेने के बाद ये अपॉन में आ जाएगा x 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट। आ रही बात समझ में? ना। Now, question number 3. In the first part, again, we have to differentiate what is u. U is x power 4. So u dash is 4x cube. V is e power 3x. So v dash is 3e e power 3x और power का derivative साथ में which is 3. So now y dash will be u, the derivative of v e की power 3x plus v e की power 3x, the derivative of u 4x cube. अब कॉमन इसमें से क्या आ रहा है? x क्यूब कॉमन आ रहा है और e की पावर 3x कॉमन आ रहा है। तो इन द ब्रैकेट क्या बचा हमारे पास? 3x प्लस 4। इन द ब्रैकेट क्या बचा हमारे पास? 3x प्लस 4। नाउ इन द सेकेंड पार्ट डिफरेंशिएट करना है इसको। सो y डैश विल बी लॉग के साथ जो भी एलिमेंट है अपॉन में आ जाएगा 2 cos x, सॉरी 2 प्लस cos x, 2 प्लस cos x और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में 2 का 0 cos का माइनस साइन x। आ रही है बात समझ में? लॉग के साथ जो भी एलिमेंट हो वो अपॉन में आ गया और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ गया। अब आइए इन द थर्ड पार्ट व्हाट इज u? u is sin x, so u dash is cos x. What is v? v is 1 plus under root x, so v dash is 1 का डेरिवेटिव 0, अंडर रूट x का 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। नाउ u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा तो y डैश क्या डेवलप होगा? v द डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u, सॉरी माइनस u द डेरिवेटिव ऑफ v क्या आ गया? 1 अपॉन 2 अंडर रूट x होल अपॉन v स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट x का होल स्क्वायर। फिर एलसीएम ले लीजिए 2 अंडर रूट x से। नीचे ब्रेक कर सकते हैं ना?
2 अंडर रूट एक्स से एलसीएम ले लीजिए, तो 2 अंडर रूट एक्स यहां पर आया, हियर इट इज 1 + अंडर रूट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स को नीचे लेकर आ जाइए, 1 + अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, नॉट नेसेसरी टू सिंप्लीफाई मोर, काफी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहा गया? अ कर्व is this, find a set of values of x for which dy over dx is greater than 0. So first calculate dy over dx. It will be 3x square minus 18x plus 24. As we know that 3x square minus 18x plus 24 is greater than equals to 0. What are the two values of x? The critical values are, इसको अगर हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, the critical values are 3 minus 18, 24. 4 and 2. Critical values are 4 and 2. Critical values को हम equal to के साथ लिखते हैं, 4 and 2. Therefore, the final answer will be, आंसर लिखने का पैटर्न क्या है? x लिखना है आपने, जो साइन आपको लास्ट स्टेप में दिया गया वो साइन आपने लगाना है, स्मॉलर वैल्यू हियर, लार्जर वैल्यू हियर. दिस इज द रिजल्ट. आ रही है बात समझ में? अ क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क, अ सिंपल क्वेश्चन. Now, next, the normal to the curve at a point on the curve where x equals to 3. Cut the y-axis at P. Find the equation of the normal and the coordinates of P. We need to calculate the equation of normal. क्या कह रहे हैं? Normal to the curve at the point on the curve where x is 3. जहां x 3 है, for example, here is the curve. इस जगह पर एक नॉर्मल है और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 3 है. x की वैल्यू क्या है? 3 है. कहा गया ये नॉर्मल आगे चल के कट्स द वाई एक्सिस एट पी. वाई एक्सिस को कहां से कट कर रहा है? पी से कट कर रहा है. अगर वाई एक्सिस को पी से कट कर रहा है तो इट मींस एक्स 0 होगा और वाई की कोई वैल्यू होगी. यहां पर भी इन्होंने एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 3. सर इक्वेशन में 3 डाले थे तो y की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 3. अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट 3 को इक्वेशन में रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जरा बताइएगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? अगर हम इक्वेशन में x की जगह पर 3 रख देते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? क्या थी? 18. द आंसर इज 18. ना, पता ये चला नॉर्मल कहां से पास कर रहा है? 318 से. नॉर्मल कहां से पास कर रहा है? 318 से. अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है. हमें क्या करना है? नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है. अब देखते हैं जरा नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकल कर आएगी. नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकल कर आएगी? एग्जैक्टली. एक मिनट. अब देखिए आप, कंडीशन हमारे पास ये है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास ग्रेडियंट होना चाहिए. किसका? नॉर्मल का. हम लोग dy और dx कैलकुलेट कर चुके प्रीवियस पार्ट में. क्या था? dy और dx कैलकुलेट कर चुके प्रीवियस पार्ट में. क्या था? 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24. 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24. अब इसमें अगर मैं x की जगह पर 3 रख दूं, x की जगह पर 3 रख दूं तो क्या आंसर आएगा? और dy और dx बेसिकली क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट. ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट. जरा मुझे x की जगह पर 3 रखकर बताइए क्या आंसर आ रहा है.
-3। पता ये चला ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कितना है, -3, तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, 1/3, नेगेटिव रेसिप्रोकल। नाउ बाय यूजिंग y माइनस y1 18 इक्वल टू m x माइनस x1 कितना है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y 18 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 54 equals to x minus 3. So now 3y equals to x plus 51। ये हमारे पास इक्वेशन किसकी बनकर आ गई, नॉर्मल की। किसकी बनकर आ गई, नॉर्मल की। जब नॉर्मल की इक्वेशन बनकर आ गई तो अब p के कोऑर्डिनेट्स इजीली आ सकते हैं। अगर मैं इक्वेशन में x को 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 51 डिवाइडेड बाय 3। क्या आ जाएगी, 51 डिवाइडेड बाय 3, एंड 51 डिवाइडेड बाय 3 इज 70। दिस इज द पॉइंट P। हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने थे। इज दिस क्लियर। डिफरेंशिएशन जो dy और dx है, ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है। हमने ये कोऑर्डिनेट रखा 3x की जगह पर, तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ गया। नेगेटिव रेसिप्रोकल किया तो नॉर्मल आ गया। इक्वेशन निकाली, इक्वेशन में x को 0 रख दिया तो p के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है। नाउ मजीद आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया, अ डायग्रामेटिकल क्वेश्चन। हियर इज अ ह्यूज डायग्राम एंड व्हाट वी हैव टू डू इन दिस। आपसे कहा गया ये पिरामिड आपको गिवन दिया गया है और कुछ हमें चीज प्रूफ करना है। इन द फर्स्ट पार्ट, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर AD। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर AD। AD की लाइन आपको सामने नजर आ रही है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर AD इन टर्म्स ऑफ हाइट and show that the volume of the cuboid is given by this। अब देखें पूरी स्टोरी है क्या क्वेश्चन में। द डायग्राम शोज द क्यूबॉइड ऑफ हाइट h। क्यूबॉइड ऑफ, ये दरमियान में जो बना हुआ है क्यूबॉइड बना हुआ है। ये जो बॉक्स बना हुआ है, जो डब्बा बना हुआ है, ये क्यूबॉइड है। इसकी हाइट कितनी है, h। इनसाइड द पिरामिड, पिरामिड की हाइट कितनी है, 8, विद स्क्वायर बेस। पिरामिड की स्क्वायर बेस है, पिरामिड की स्क्वायर बेस है। द बेस ऑफ द क्यूबॉइड sits on the square base PQRS of the pyramid. The point ABCD are corners of the cuboid and lie on the edges। A किस पर है, OP पर। सारे एजेस के ऊपर ये पॉइंट्स आ रहे हैं। द पिरामिड OPQRS एंड OABCD। OPQRS बड़ा वाला पिरामिड, पूरा बड़ा वाला पिरामिड, और ये जो अंदर क्यूबॉइड की जो टॉप से जो एक छोटा पिरामिड बन रहा है, दे आर सिमिलर। फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर AD। AD की एक्सप्रेशन आपने कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ हाइट। इन टर्म्स ऑफ हाइट। अब सुनिएगा कैसे होगा। इन्होंने जो ये चीज लिख दी है ना, यहां से पकड़ में आया है क्वेश्चन। दे आर सिमिलर। सिमिलैरिटी की कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो अब आप देखिए, अगर मैं छोटा वाला ट्राइंगल, हमें क्या कैलकुलेट करना है, AD। अगर मैं छोटे वाला ट्राइंगल की एक साइड लूं AD, इसका रेशियो लूं रिस्पेक्टिव PS से। AD साइड और PS साइड, छोटे पिरामिड और बड़े पिरामिड की सेम साइड है, इक्वल टू छोटे पिरामिड की हाइट कितनी है, छोटे पिरामिड की हाइट कितनी है, 8 माइनस h, और बड़े पिरामिड की हाइट कितनी है, 8। ऐसा ही AD हमें कैलकुलेट करना है। AD हमें कैलकुलेट करना है, किसके इक्वल हो गया, 8 माइनस h ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय PS कितना है, 4। 4 2 सा 8। आंसर कितना आ गया, 4 माइनस 1/2h। ये आ गया AD इन टर्म्स ऑफ हाइट। AD इन टर्म्स ऑफ हाइट। आगे कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हमें प्रूफ करना है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम बच्चों किसके इक्वल होता है,
वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, क्यूबॉइड है ना, या बेस एरिया इंटू हाइट। सही। लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड एडी है, ये रही हमारे पास 4 - ½ h। चलो इसको मैं सिंप्लीफाई करके ही एलसीएम लेने के बाद ही लिख रहा हूं, 8 - h/2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है हमारे पास, क्यूबॉइड की ब्रेथ भी यही हो जाएगी 8 - h/2, क्योंकि लेफ्ट राइट तो सेम है ना। हाइट ऑफ ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय हाइट, मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब 8 - h, 8 - h, 8 - h, 8 - h, मतलब 8 - h का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर एक्सपेंड होगा तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो गया 64, -2ab 16h प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, 2 × 2 = 4 मल्टीप्लाई बाय एच। अब अगर हम एलसीएम ब्रेक कर दें 64 डिवाइडेड बाय 4, 16 - 16 डिवाइडेड बाय 4, 4h प्लस इट इज h² / 4, h² / 4 सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं किससे, h से। तो जनाब अब ये जब मल्टीप्लीकेशन हुआ तो क्या हुआ, h³ / 4 -4h² प्लस 16h, एंड दिस वी हैव टू प्रूव। आ रही है बात समझ में, हमें यही प्रूव करना था वॉल्यूम। एनी कंफ्यूजन, नो। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, गिवन दैट h कैन वेरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट फॉर विच v इज मैक्सिमम। मींस वॉल्यूम के फॉर्मूला में h³ / 4 -4h² प्लस 16h। आपसे कहा गया h कैन वेरी, मींस h वेरिएबल है यहाँ पर। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट जहां पर वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है। तो बेटा मैक्सिमम वॉल्यूम, मिनिमम वॉल्यूम, एक्सट्रीम वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना होता है इक्वेशन को। तो हम कर रहे हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हाइट, क्योंकि हाइट इज अ वेरिएबल हियर। तो क्या हो जाएगा, 3/4h² -8h प्लस 16 = 0 कर देंगे। h की दो वैल्यूज कैलकुलेटर से जरा निकाल कर बताओ मुझे, व्हाट आर द टू वैल्यूज ऑफ h। बच्चों दो वैल्यूज आई, एक हाइट आई 8 और दूसरी आई 8/3। अब देखिए हमें वो हाइट की वैल्यू चाहिए जहां पर वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो अब हमें जब ये चेक करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम कहां पर है या मिनिमम कहां पर है, तो उसके लिए हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना होगा। सेकंड डेरिवेटिव आपको बताता है नेचर, सेकंड डेरिवेटिव आपको बताता है नेचर। सो d²v/, dh² क्या हो गया, इट विल बी 3/2h -8। अब इसमें, अब इसमें एक बार h रखो 8, बताओ आंसर कितना आया। व्हेन h इज 8, व्हाट इज द वॉल्यूम, सॉरी व्हाट इज द सेकंड डेरिवेटिव, मतलब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है। पॉजिटिव ही आएगी, 8 पर आया 4 विच इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 सेकंड डेरिवेटिव आ जाए तो क्या होता है, मिनिमम। और जब 8/3 रखा आपने, जब 8/3 रखा आपने तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आया, -4, ये लेस देन 0। तो इस पर क्या होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। we need, given that h can vary, find the value of h, therefore h की कौन सी वैल्यू सिलेक्ट की जाएगी, 8/3। आर यू क्लियर। Now, after that, question number 6. What we have in this question number 6? A curve has equation this.
normal to the curve at point this meets the x-axis, x and y-axis at A and B. Find the exact area of the triangle AOB. सबसे पहले तो हम नॉर्मल निकाल लेते हैं कर्व का जब x π/4 है। नाउ अब आप देखिए, अगर कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू 4x प्लस 3 cos 2x, x की वैल्यू इसको में रखो π/4 और y की वैल्यू मुझे बताओ, कैलकुलेटर इन रेडियंस, कैलकुलेटर इन रेडियंस। वैल्यू ऑफ y इज पाई, कोऑर्डिनेट ये बने हमारे पास π/4 एंड पाई। अब कर्व को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y डैश 4x का डेरिवेटिव 4 प्लस 3 cos 2x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस साइन 2x, और एंगल का डेरिवेटिव 2, एंगल का डेरिवेटिव 2। सो द आंसर विल बी 4 - 6 साइन 2x। ये आ गया डेरिवेटिव, मींस ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। जरा मुझे बताइएगा ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट व्हेन x इज π/4। यस, कितना आया? -2, -2। हमें तो नॉर्मल के ऊपर काम करना है ना, हमें तो किस पे काम करना है? नॉर्मल के ऊपर। तो जनाब ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या हो गया? 1/2। कोऑर्डिनेट मौजूद है ऊपर, इक्वेशन बनाएंगे हम y - y1, y1 इज पाई इक्वल टू m x - x1, x1 कितना है? π/4। जनाब 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2y - 2 पाई इक्वल टू x - π/4। सो नाउ 2y इक्वल टू x प्लस 2 पाई - π/4। फाइनल आंसर 2y इक्वल टू x प्लस 7 π/4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ गई। अब कह रहे हैं नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। नॉर्मल जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। जब नॉर्मल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो वाई 0 होगा, और जब नॉर्मल वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो एक्स 0 होगा। जनाब अगर मैं एक्स को 0 रखता हूं, एक्स को 0 रखते हैं हम, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स को 0 रखते हैं तो वाई की वैल्यू आ रही है 7 π/8। और अगर y को 0 रखते हैं हम, और अगर हम y को 0 रखते हैं, y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ रही है -7 π/4। दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स, दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स। क्या पता चला? x एक्सिस में नॉर्मल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? x एक्सिस में नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहा है -7 π/4 पर, और y एक्सिस में नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ? 7 π/8 पर। हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ दिस ABNO। हमें कैलकुलेट करना है इस ट्राइंगल का एरिया। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया इक्वल टू हाफ, बेस कितनी है? 7 π/4, और हाइट ऑफ द ट्राइंगल कितनी है? 7 π/8। सो द आंसर विल बी 7 7 49 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64। दिस इज द एरिया। अगर हम एरिया की एग्जैक्ट वैल्यू लिखें तो एग्जैक्ट वैल्यू ये आएगी। और डेसिमल में जरा मुझे एरिया बताइएगा बेटा, इसको पूरे को सॉल्व करके डेसिमल में बता दे। यस, दिस इज 7.56। दिस इज द एरिया इन डेसिमल, राइट? सो गाइस,
This is all about today's class. We have done some questions from the past paper of differentiation. Inshallah, in the next class, we are going to start the topic of integration. Thank you very much. See you inshallah in the next class. Allah Hafiz.